بعض لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے، ذرا سا بھی آپ دھوپ میں چلیں، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا؟ دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے۔ کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں، کوئی بہانہ کر لوں، کوئی کیا کر لوں۔ کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت۔ بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں، بہت سخت روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشکل، کل نہیں رکھیں گے، آج کیا کریں، سارا دن کیسے گزاریں۔ یاد رکھو، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا۔ غیرت پر اگر سودا کر لو نا، سمجھوتا کر لو، وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو۔ روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے۔ یہ بڑی حکمت ہے اس میں۔ اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا، بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو، تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور آسٹریلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پوری زندگی مزے میں رہتے، اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے۔ اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا، ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے۔ آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں، کلپ بنانے پر جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا، تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں، اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے وہ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں۔ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں۔ میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے، بھائی اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے۔ ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے، بھائی ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑھی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں اور تراویح پڑھی اور بس وہی سحری ہو گئی۔ پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-20 19-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں، اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے، اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں، وہاں تسلی دے دی ایام معدودات، ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے، چند گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 بس، اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی، 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے۔ تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے، جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں، میں تو خود بھگت رہا ہوں، میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے، تو مجھے آج صبح 9 بجے سے صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، پیاس لگنا شروع، میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع، سارا دن کیسے گزرے گا؟ بس گزر گیا، بچ گئے، زندہ ہیں آپ۔ پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی، اس کا اپنا مزہ ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 لوگوں کو، مسافر کو اور بیمار کو، اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی، اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے، نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے، یہ بچہ بیمار ہو جائے گا، دودھ ہی نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات ہے، پھر چھوڑ۔ باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، نہ روزہ آپ، کیونکہ اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں، مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی، ایک بڑے لیول سے تھے، کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا، لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں گا دنیا سے، اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں، عمارت تو قائم ہو، قیامت کے دن پتہ تو چلے کہ یہ مسلمانوں کا بچہ تھا۔ یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بغیر آپ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائی رکن کے بغیر کمیٹی کا تصور ہے؟ ارکان غائب میں کسی کمیٹی ہے تو کمیٹی تو ہے ہی نہیں۔ نماز کے ارکان ہوتے ہیں قیام، رکوع، سجود، ان میں سے ایک بھی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں رہتی۔ تو اسلام کے 5 بیسک احکام ہیں، جو یہ وہ ارکان ہیں کہ جو مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرتے ہیں۔ بھائی مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ مسلمانوں کی، غیر مسلم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ بولو نا بھائی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ہے، وہ بھی 2۔ کتنی ناک ہوتی ہے ہندوؤں کی؟ 1۔ تو مسلمانوں کی کتنی ناک ہے؟ ہندو کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ ہمارے بھی کتنے ہیں؟ ان چیزوں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہندو کا۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ مسلمان جب فجر کی اذان آتی ہے یا الصلاۃ، تو بستر چھوڑ دیتا ہے، اور ہندو اور عیسائی پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، وہ وضو کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اسی طرح مسلمان پوری زندگی میں 1 مرتبہ لازمی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ۔ کتنا آسان بنایا اللہ نے دن کو، اگر وہ بھی پیسے ہیں جیب میں۔ اور تیسری بات کیا ہے، بلکہ دوسری نماز کے بعد دوسری بات ہے زکات، یہ بھی اسلام کا کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یار میری نمازیں رہ گئی تھیں تو میں چاہوں مرنے سے پہلے ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں تاکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن کیا ہو جائے، پورا۔ دوسرا رکن ہے زکات،
तो वो बहुत आसान है, साल में एक मरतबा 2.5%, 1 लाख पे 2,500 रुपए, वो साल में एक दफा देना होता है, वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा है हज, हज की जिंदगी में, और वो भी हर एक पर नहीं है जिसके पास खुला पैसा हो, जा सकता है। ज़कात भी हर एक पर नहीं है, तो सिर्फ नमाज हर एक पर है और रोजा हर एक। तो एक नमाज है उसको कर लो भाई, और एक क्या है, और रोजा नमाज से आसान है, इसको तो फोकस करो पहले, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया वही नहा लकबीरतुन, बड़ी मुश्किल चीज है। क्यों? सारी जिंदगी पढ़नी पड़ती है, सिवाय उन लोगों पर जिन पर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं उन पर मुश्किल नहीं है, लेकिन आम आदमी पर क्या नमाज मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यू पूरी जिंदगी रोजे इतने मुश्किल नहीं है जितने नजर आते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, पूरी जिंदगी थोड़ी कह रहे हैं कि रखते रहो भाई, 29 दिन रख लो, और उसमें भी तुम्हारी जिंदगी में 2 दफा गर्मियों में आएंगे, वो टेंशन वाले होंगे, और जिंदगी में 2 दफा सर्दियों में आएंगे, वो तो बहुत हलवे की तरह आसान होंगे। दिसंबर के रोजे भी हमने रखे, पता नहीं चलता था, इतनी लंबी रातें होती थी कि आपने जनाब सुबह 6:45 बजे तो 6:15 बजे तक तो सहरी चल रही है, 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे फिर इफ्तार हो गया, 12 घंटे का रोजा, वो भी ठंडा ठाट, और फिर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हैं आपके पास खाने के। हमें याद है हम तरावी से 8:45-9 बजे फारिग हो जाते थे, उसके बाद फिर खाते रहो, सर्दी में खाने का भी मजा आता है, वो तो पता ही नहीं चलता था। तो जिंदगी में 2 मरतबा क्या होता है रमजान आपकी जिंदगी में गर्मियों में, यानी 2 मरतबा का मतलब ये कि 2 ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें रमजान चंद साल तक बोलो भाई गर्मियों में आते हैं। और अभी कितने आगे तो हो गए ना, अभी हमारी जिंदगी में जो आना था, अब सिर्फ 6 साल मजीद गर्मियों में आएगा, 6 साल बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर ठंड में आना, मार्च में 6 साल के बाद मार्च में आना शुरू हो जाए, वो बिल्कुल मुतदिल होंगे, और 9 साल के बाद खानदानी सर्दी, फिर पता ही नहीं चलेगा रोजे का। कितना आसान अल्लाह ने रख दिया, हमेशा के लिए जून जुलाई के नहीं रखे। 36 साल के बाद रोजा रिपीट हो जाता है, समझ रहे हो, 36 साल के बाद उसी मौसम में आता है जिसमें 36 साल पहले आया था। तो इंसान की जिंदगी में 36 साल 2 दफा ही आते हैं, वो भी बशर्ते कि हम में से हर शख्स के मुकद्दर में जिंदगी हो, वरना कोई पता नहीं आखिरी रमजान हो कौन बचेगा कौन मरेगा। तो इसलिए कम हिम्मती, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हट्टे कट्टे लोग कह रहे होते हैं यार बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, बर्दाश्त नहीं, थप्पड़ मारो जाके कम वक्त को, कम हिम्मत हो गए हैं, बिल्कुल ही कुछ नफ्स के खिलाफ और कुछ अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ करने की कुव्वत ही खत्म हो गई है। क्या करोगे दुनिया में, सर्वाइव कैसे करोगे? इंसान को दुनिया में कुछ भी करने के लिए ना अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, सारी ख्वाहिशात किसी की भी पूरी नहीं होती, इसलिए हिम्मत करके रोजे रखें, दिल लगे ना लगे। मैं बार बार कहता हूं कुछ भी नहीं होता, पड़ जाओ आराम से, करवटें लेते रहो, ठंडे पानी से नहाते रहो, बैठे रहो, मरी चले जाओ। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, कहां जाके, बहुत से लोग पंजाब के पैसे वाले हैं लेकिन रमजान के रोजे नहीं छोड़ते, तो वो कहां चले जाते हैं, मरी चले जाते। ठीक है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया, लेकिन रोजा छोड़ने की मेरे भाई इजाजत, न छोड़ने की ना तोड़ने की, सुस्ती नहीं करनी है इसमें। रहा ये मसला कि मजदूर कैसे रखेगा, ये मसला मैं बार बार बता चुका हूं। तो एक आलिम मुस्लिम, मैंने ये 2-3 दिन से थोड़ा सा ये क्लिप देखी, ये जो लाइव शो चलता है ना डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का, उसमें कुछ उलमा बैठे होते हैं आपस में बहस, तो उसमें आलिम ये कह रहे थे कि मजदूर के लिए जो है ना सख्त मजबूरी है तो रोजा छोड़ना जायज है। और एक मौलवी साहब कह रहे थे मजदूर रोजा नहीं छोड़ सकता, तो दूसरे ने कहा कि ये जो मौलवी साहब कह रहे हैं जो मजदूर रोजा नहीं छोड़ सकता, ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के कह रहे हैं, ये जरा उस मजदूर की जगह जाके खड़े हो फिर ये फतवा दें। तो याद रखो, एयर कंडीशन रूम में बैठ के भी वही बात की जाएगी जो शरीयत की है, और धूप में बैठ के भी वही बात की जाएगी जो कोई मुफ्ती एयर कंडीशन रूम में भी बैठा हो तो ये फतवा नहीं दे सकता कि मजदूर रोजा छोड़ सकता है। मजदूर को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह ने अर्श पे बैठ के कानून बनाया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कानून है। मुफ्ती चाहे एसी में बैठे, गद्दे पे बैठे, ठीक है, वो अपनी तरफ से मजदूर को रियायत, क्योंकि रोजा मजदूर मुफ्ती साहब के लिए नहीं रख रहा, किसके लिए रख रहा है, तो लोगों के ऊट पटांग कमेंट्स होते हैं। तो एक मौलवी साहब ये कहने लगे कि भाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में सहाबा को एक मौके पे रोजा तोड़ने का हुक्म दिया, जिहाद का सफर था, बेहोश हो रहे थे सहाबा, तो आपने सबको हुक्म दे दिया रोजा तोड़ दो, खुद भी आपने प्याला पिया, और फिर भी जिन्होंने रोजा रखा तो आपने फरमाया कि आज के दिन जिन्होंने रोजा तोड़ा वो ज्यादा अजर मिला और जिन्होंने रखा उनको अजर कम मिला। तो जब उस मौके पे नबी ने इजाजत दे दी तो इसका मतलब है कि इतनी टेंशन इस्लाम में बोलो भाई नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं जो कुरान और हदीस की रूह को नहीं समझते, अपनी तरफ से ऐसे कयास करना, कयास के भी कुछ शराइत हैं, उस उसूल हैं जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा तोड़ा है सफर में, सफर में तो रोजा वैसे भी वाजिब बोलो भाई नहीं है, और दूसरा सफर भी जिहाद का था। अगर इस तरह से मामला होता और साहबा बेहोश होकर गिरने लगते, शिकस्त का अंदेशा था। जिहाद ऐसी चीज है जिसमें इतना इस कदर छूट दी गई है कि अगर दुश्मन आपके मुसलमान लोगों को कैदियों को ढाल बना ले तो फुकहा कहते हैं कि उनको भी कत्ल करना जायज है। नहीं यारी बात भाई, आप दुश्मन से लड़ रहे हैं मैदान जिहाद में, गोलियां चला रहे हैं, तीर फेंक रहे हैं, उन्होंने जो मुसलमान कैदी थे ना वो अपने आगे ढाल बना दिए, क्या कर दिए, ढाल बना। अब आप उनको कैसे मारोगे, लेकिन नहीं मारोगे तो फतह किसकी हो जाएगी, उनकी, इसलिए फुकहा ने दिया कि मार दो। फुकहा ने क्या किया, क्या फतवा दिया, मार दो। नियत ये करो कि मैं उस दुश्मन को मार रहा हूं लेकिन मजबूरन मुसलमान डिलीट हो रहा है तो रुक थोड़ी सकते हैं, क्योंकि मैदान जंग में अगर शिकस्त हो गई फिर जो आपको वो गाजर मूली की तरह काटेगा और आपकी इस औरतों की इज्जतों से खेलेगा, वो नुकसान बोलो भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो जिहादी सफर को आम सफर पे भी कियास नहीं किया जा सकता और हालत हजर को सफर पे तो बिल्कुल भी कियास नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो सही बात है जो फुकहा बयान करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कुरान और हदीस को हकीकी मानों में फुकहा ने समझा है। आपकी अपनी राय का एतबार, हर आदमी कुरान और हदीस का लेवल तो लगा रहा है, मगर जरूरी नहीं कि वो आवाम के पास इल्म नहीं है, वो 2-4 रिवायतों और 2-4 वाकयात को देख के मुतासिर हो जाते हैं कि मजदूर चाहे कितनी सख्त टेंशन में हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत बोलो भाई नहीं है। अब सवाल पैदा होता है वो करेगा क्या, क्योंकि मुफ्ती साहब तो एयर कंडीशन में बैठ के फतवा दे रहे हैं, वो उस मजदूर की जगह जाएं तो वो भी ये कहेंगे कि छोड़ दो, नामुमकिन है ना उसके लिए तो रखना। इतनी गर्मी में जो कुदाल चला रहा है वो 1 घंटे में बेहोश हो जाएगा। उसका मसला ये है कि पहले तो वो ये कोशिश करे कि दिन के वक्त में ऐसा मेहनत मजदूरी वाला काम ना करे। और रात को मैंने देखा है बहुत से पठान मजदूरों को रोजे नहीं छोड़ते, पठान मजदूर, एक बड़ी प्यारी बात है इन लोगों में, ना नमाज छोड़ेंगे ना रोजा छोड़ेंगे। इसलिए मैं तलाश करता हूं पठान मजदूर ज़कात देने के लिए रमजान में,
तलाश करता हूं, और हरामखोर जो रोजाखोर मजदूर होते हैं ना, उनको नहीं दिया करो कमबख्तों को। और याद रखो, रमजान में, मैं ये नहीं कह रहा पठान रखते, बाकी सारे मुसलमान नहीं, बाकी भी रखते हैं, लेकिन पठानों में देखा सब रखते हैं, बाकी भी रखते हैं, लेकिन पठानों में 100% रखते हैं, बाकियों में 100% नहीं रखते। तो एक बात यहां ये भी मसले की आ गई कि ये बात खूब समझ लो कि जो मजदूर आपके घर में काम कर रहा है और रोजा नहीं रख रहा, उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना आपके लिए जायज, बोलो ना यार, नहीं है। लोग खाने बना बना के दे रहे होते हैं उसको, ये अल्लाह की खुली नाफरमानी है, इस्लाम का रुकन है। आप गुनाह में किसी के साथ शिरकत से बोलो रोजा रखो, नहीं रखने तो जाओ अपने खर्चे पे जाके खाओ। अगर बीमार है फिर एक अलग बात है, बीमार है तो खिला सकते हैं, वो तो वैसे भी किसी को भी खिला सकते हैं। बीमार नहीं है उसको बोलो आपको रोजा रखने छोड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, हमारा मजदूर है, खिलाओ पिलाओ, चाय भी पिलाओ, ताकि दिल जमी के साथ काम कर सके। बल्कि बास फैक्ट्रियों में तो नालायक लोग चाहते हैं कि मजदूर रोजा न रखें। तो ये सब अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बातें हैं। इस कायनात का हकीकी खालिक अल्लाह है। हाँ, मैं यस कर रहा था कि मजदूर करेगा क्या, तो मजदूर ये करेगा या तो रात के वक्त, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो छुट्टियां ले ले रमजान में। ये भी मुमकिन नहीं है कि छुट्टियां लेके दिहाड़ी नहीं बनेगी, घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो फिर वो रोजा रखेगा। और अगर ऐसी कंडीशन उसकी रोजे के दौरान होती है कि बेहोश होने लगता है या चक्कर आने लगते हैं, बीमार होने लगता है, तो फिर बीमार आदमी को रोजा तोड़ने की बोलो भाई इजाजत। इसलिए फुकहा ने जो कुरान और सुन्नत को समझाया ना, ये अपनी अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये कुरान कह रहे रोजाना रोजा रखे, रोजाना तोड़ दे, गुनाह नहीं है, छोड़ेगा तो गुनाह होगा। अब लोग कहते हैं कि जब रख के तोड़ना ही है तो रखने की क्या जरूरत, तो फिर आपकी अपनी अकल है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि मरीज और मुसाफिर छोड़ सकता है, इसके अलावा नहीं रखेगा। जब ये कंडीशन बन गई तो तोड़ देगा, बल्कि वो खुद नहीं तोड़ रहा तो आप तोड़वाएं उससे जबरदस्ती, नहीं आ रही बात। बेशक रोजाना तोड़ दे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसने यहां भी अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहा है और तोड़ने में भी किसके हुक्म को, क्योंकि बीमार आदमी हो और जान पे बन जाए तो सिर्फ तोड़ना जायज नहीं है, बल्कि तोड़ना वाजिब है, क्योंकि जान बचाना पहले फर्ज है। तो हम नहीं कह रहे कि वो मर जाए और शाम को उसकी लाश उठे, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि रखेगा, रोज कोशिश करेगा, हत्तल इम्कान इतनी मेहनत ना करे कि शाम तक ना चल सके। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो फिर क्या हुक्म है, तोड़ दे रोजा, और ये वाला रोजा फिर सर्दियों में कज़ा कर ले, रोज रखेगा चाहे रोज तोड़ना पड़ जाए। ये फतवा है कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, छोड़ने की जात नहीं। हाँ, और ये भी याद रखो कि बहुत से बीमार ना खाम खामे फंडर बनने की कोशिश भी करते हैं। अभी हमारे एक दोस्त यहीं बैठे हुए थे, टाइफाइड हुआ उनको, टाइफाइड के बाद अभी उठे, हाथ कांप रहे हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा, और रोजे रख रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं रखो रोजे, आप अपनी कंडीशन देखो यार, अभी टाइफाइड का हमला हुआ है आपके ऊपर, बीमारी से उठे, दोबारा हमला ना हो जाए, कमजोरी में तो दोबारा बीमारी, कांप रहे हैं आप। लेकिन माशाल्लाह कह रहे फिर पता ही नहीं चलेगा रमजान का, इसी दफा पता चलेगा, अगली दफा बस इसी दफा 2-4 दिन पता चलेगा, अगली दफा का फिर चांस हम चाहते हैं कि 25-30 साल और पता चलता रहे रमजान। तो बीमारी में अगर बीमारी बढ़ने का अंदेशा है तो फिर रोजा छोड़ देना अफजल है, क्योंकि अल्लाह की गुंजाइशों से फायदा उठाओ, अल्लाह के सामने भिखारी बन के रहे, अल्लाह तूने मुझे तोहफा दिया मैं उसे लूं, अल्लाह के सामने फंडरगिरी नहीं करो कि आपको एक गिफ्ट दे रहा, आप कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं, मैं ऐसे चलाऊंगा टाइफाइड में। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर इंसान अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाए। लेकिन जहां अल्लाह ने रुखसत दी है, अल्लाह ने गर्मी की वजह से रुखसत नहीं दी, मजदूरी मेहनत की वजह से रुखसत नहीं दी है, वो तो रखना पड़ेगा। कितनी टेंशन, रोजा तो नाम ही टेंशन का है ना, रोजा नाम इसका कि तड़पो प्यास में, भूख में तड़पो, टेंशन हो, इसी में सवाब है। सहाबा कराम इतने मजे से खुशी से रोजे रखते थे, हम तो सिर्फ रमजान के ना वो नफली रोजे गर्मियों में रखते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन जब इनकी मौत का वक्त आया रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि हम मौत के डर से रो रहे हैं, फरमाया नहीं, गर्मियों में जो अल्लाह के लिए रोजे रखता था और प्यास की शिद्दत से जो ज़बान खुश होती थी, उसमें जो मजा आता था, वो मजे अब खत्म हो रहे हैं। क्योंकि जिसको इश्क होता है ना अल्लाह से, उसको तो महबूब की याद में तड़पने में मजा आता है। मुतनब्बी ने क्या प्यारी बात की है, अदलुल अवादिल हौल क़ल्बि ताही, मुझे याद दिलाना है, रोजे के कफारा भी बयान करूंगा, ये जो तोड़ देते हैं ना सजा क्या है दुनिया में इसकी। अदलुल अवादिल हौल क़ल्बि ताही व हुवल अहिब्बति मिन्हु फी सौदाइही। शायर कहता है कि मलामत करने वालों की मलामत मेरे दिल के इर्द गिर्द घूमती है और महबूब की मोहब्बत मेरे दिल के सियाह नुक्ते में है। तो जो मुझे महबूब के बारे में मलामत करता है, उस मलामत का मेरे दिल पे असर ही नहीं होता, क्योंकि वो दिल के अंदर मलामत घुसती नहीं है। मोहब्बत दिल के अंदर है और मलामत दिल के बाहर बाहर घूमती रहती है। या तो मोहब्बत दिल के बाहर होती तो मलामत जाके उसको टक्कर मार के बाहर निकाल देती, घुसी नहीं देती। अब सवाल ये पैदा होता है, अगले शेर में जवाब देता है कि सवाल ये पैदा होता है कि मलामत दिल के बाहर क्यों घूमती है, दिल के अंदर क्यों नहीं घुसती। भाई जैसे महबूब की मोहब्बत दिल के अंदर घुस गई, तो ये जो लोग मलामत कर रहे हैं मुझे महबूब के बारे में, ये मलामत भी दिल में घुस के उसको निकाल दे। शायरों के कलाम में बड़ी बलागत होती है। तो वो जवाब देता है, यशकुल मलामु इलल लवाइनि हर्रहु व यसुद्दु हिना यलुमना अम बुरहाइही। कहते हैं वो मलामत असल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन महबूब की मोहब्बत से दिल गर्म इतना होता है कि उसकी गर्मी की वजह से वो जलने लगती है और वापस जाके जिसने मलामत की है ना उसको शिकायत करती है कि किधर भेज दिया तुमने जाके मुझे। नहीं यार बात समझ, जाके किसको शिकायत करती है, जिसने मलामत, जो मलामत करने वाले हैं ना, वो तो कह रहे मलामत करने वालियां, लेकिन मैं वाले बना रहा हूं इसको फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर इधर उधर दिमाग आता जाएगा। वो तो कह रहे मलामत करने वालियां, क्योंकि औरतों की मलामत का असर ज्यादा होता है इंसान के ऊपर। कहते हैं जो मलामत करने वालियां है ना, उनको जाके बताती है मलामत कि भाई भेजा तुमने गलत जगह पर है, उसका दिल बहुत ज्यादा गर्म है। तो अल्लाह की मोहब्बत का इश्क अगर दिल में पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, तो इंसान फिर लोगों की मलामत और अपने नफ्स की मलामत, इन चीजों से लोग तो कहेंगे क्या सूखे जा रहे हो रोजे रखे, क्या हो गया। जो लिबरल लोग हैं ना, उनको ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमाकत लगती है भूखा प्यासा रहना। ये जो सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, जो लिबरल लोग हैं ना, हंसते हैं मुसलमानों पे, ये बेवकूफ लोग हैं, सारा दिन भूखे पड़े हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा, अंग्रेज कहां जा रहा है, तरक्की करके चांद पे पहुंच गया, और ये तो वो 4 बजे खा रहे हैं सारा दिन भूखे। ना दफ्तरों में सही तरह से काम होता है, हकीकत है रोजे में काम नहीं होता, आमतौर पर बैठे हुए हैं सूखे सूखे, ना गुटका मुंह में होता। कोई आए ना मसला पूछने के लिए, वो आदमी को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हर चीज में पकौड़े नजर आ रहे होते हैं उसको, हर चीज में जनाब उसको शरबत नजर आ रहा होता है। और कैसे, मैं तो आजकल टफ रोजे चल रहे हैं, घर वालों को बोला हुआ है कि पहले 5 मिनट पहले पूरा दस्तरखान सज जाना चाहिए, हर चीज हो, इंतजार की, इधर अजान हुई और पता चला पानी फिर से निकल के लाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है भाई। सब रखा हो,
सब रखा हुआ, ऐसी टेंशन चल रही है आजकल, क्योंकि काम बोलना बहुत पड़ रहा है ना मुझे, रमजान दिन के वक्त भी मेरे वो होते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैं ये कर रहा था कि भाई अल्लाह की मोहब्बत है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो लिबरल लोग हैं ना, जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे ना, तो कौम मजाक उड़ा रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उड़ा लो, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिस खुदा ने पैदा किया, जिस रब ने बनाया, उसका हुक्म है कि छोड़ दो खाना पीना, उसका हुक्म है, और इजाजत दी गरूब आफ्ताब के बाद खाओ, तो हम उसके हुक्म में कर रहे हैं। कोई और हमें कहता तो हम इतने बेवकूफ, किसी के कहने पे तो हम चाय और गुटके नहीं छोड़ते। खाना कहां से छोड़ देंगे? आपका बॉस आपको कहे कि दोपहर का लंच छोड़ दो, छोड़ दोगे? बोलेगे जॉब छोड़ दूंगा मैं, लंच। अगर कोई आपका बॉस घर में आके कहे आपसे कि मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा, सुबह का नाश्ता छोड़ दे, बोले भाई मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ूंगा। ये तो अल्लाह ने कहा है तो भाई हम करते हैं, वरना हम किसी को इतनी लिफ्ट नहीं कराते। तो अल्लाह के लिए है और हमें अल्लाह से इस पर उम्मीदें हैं। इसी भूख प्यास में वो अजर दे रहा है, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए वक्त और एक क़यामत। कैसा मजा आता है खुदा की कसम, पानी पी के, खजूरें खाओ, पानी पियो, इफ्तार में ऊट पटांग चीजें नहीं खाया करो, खजूरों को ज्यादा फोकस किया करो, सही है ना? इससे ताकत भी आती है, वजन नहीं बढ़ता, तवानाई फुल मिलती है, और खजूर से खून अच्छा बनता है। जब कमजोर हो गए ना, खून तो बनेगा। अब वो चाहे उल्टी सीधी चीजें खा के सड़ा हुआ खून पैदा कर लो, खून की कमी हो जाती है ना, और चाहे तो नफीस चीजें खा के अच्छा। ये आपके पास रमजान में आपको ऑप्शन मिलता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि रमजान में अपनी खुराक का शेड्यूल हमेशा के लिए चेंज कर दो, आदत बना लो। अच्छी चीजें खाएंगे, गंदी चीजें ये तेल वेल चिकने चपड़े, पकौड़ा भी थोड़ा सा तेल में हो और अच्छे वाले तेल में। ये जो बाजार के पकौड़े हैं ना, ये उस तेल को तिलछट बना के जला के 50 लोगों को के पकौड़े उसमें तले होते हैं, वो डीजल बन चुका होता है वो, जो बाजार में पकौड़े हो रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा है जानने वाला तो फिर तो ठीक है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं ना, इनसे क्या कर लो, तो आप देखो एक महीने के बाद आपके ऐसा खून निखर जाएगा, आपकी आंखों में बिनाई तेज हो जाएगी, आपके दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो ये रमजान में अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है अपनी खुराक के शेड्यूल को चेंज करने का। अच्छी खानदानी चीजें खाना शुरू कर दो, जैतून, इंजीर, शहद, और क्या है ये जो है आपका, और खजूर, दलिया, जौ, ये चीजें खाना शुरू कर दो, समझो अपने खर्चे पे। अच्छा, तो जल्दी से उस तरफ आ जाऊं। तो रमजान का रोजा अगर किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया और ये कहते हुए कि मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं, बीमारी नहीं है ना मरने का अंदेशा है, वो तो अगला बता वैसे यार मुझसे काम ही नहीं हो रहा, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा, बार बार कूलर की तरफ दिल चाह रहा है, और एक कतरा भी हलक में उतार लिया तो रोजा भी टूट गया। और सजा क्या है? 60 रोजे लगातार। नहीं यार मेरा ख्याल बात समझ, रोजा तोड़ने का कफारा क्या है? रमजान का रोजा 60 रोजे जानकर अगर तोड़ा किसी ने, 60 रोजे ये वाला रोजा भी कज़ा करना पड़ेगा। और वो जो 60 रोजे रखने हैं, उनमें अगर 59 रोजों के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई और 60वां नहीं रख सके, तो फिर पहले दिन से दोबारा, यानी उसमें बीमारी की भी कभी उज़र काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये किसका रोजा है? रमजान का। ये मजाक नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है। इसी तरह याद रखो एक और मसला है, मुसाफिर के लिए रोजा छोड़ना जायज है, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल उस सूरत में है जब मुसाफिर को रोजा रखना मुश्किल हो। ये जो हदीस में आता है लैसा मिनल बिर्रि सियामु फी सफर, सफर में रोजा नेकी नहीं है, ये उस सूरत में है जब सफर में रोजा रखना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर सफर में रोजा रखना मुश्किल नहीं है, जैसे कि आजकल अक्सर मुश्किल नहीं होता, जहाजों का, ट्रेन का, बसों का सफर बड़े आराम से रख सकते हैं, तो ऐसी सूरत में रोजा रखना अफजल है, क्योंकि रमजान की फजीलत हासिल होगी। समझते हैं कि नहीं समझते? इसमें सुस्ती काली करके रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, जायज है, छोड़ना नहीं चाहिए। एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला और अच्छी तरह समझें कि जो मुसाफिर के लिए रोजा छोड़ना जायज है, ये उस सूरत में है जब सहरी का वक्त सफर के दौरान आ जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि दोपहर किसी का लाहौर जाने का इरादा है, तो सुबह रोजा छोड़ देता है कि बाद सफर में। ऐसा नहीं है, सहरी का वक्त मकाम पे आया है तो अभी आप मुसाफिर बने नहीं है, आप दूसरे मुसलमानों की तरह आप पर भी रोजा फर्ज है, क्योंकि अभी आप मुसाफिर बने नहीं है। अब जब आपने रोजा रख लिया तो सफर में उसको मुकम्मल करना वाजिब है, सफर में आप वो तोड़ नहीं सकते। एक खातून का पिछले साल फोन है, मैं अमेरिका से पाकिस्तान आ रही थी, तो मैंने रोजा रख लिया तो सूरज नहीं गुरूब हो रहा। सूरज गुरूब या तो यहां से जाते हुए होता है या आते हुए, एक तरफ होता है। तो मैंने कहा जाते हुए गुरूब ही गुरूब हो रहा था ना। तो क्या करें? मैंने कहा रोजा रखना फर्ज है, क्योंकि सहरी मकाम पे हो रही है। सहरी अमेरिका में मकाम पे की उन्होंने, तो अब जहाज में बैठ गए तो सूरज कितना लंबा हो गया, ठीक है, रोजा रखना पड़ेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है, हाँ जान पे बन पड़े या बीमार होने का अंदेशा हो, वो तो फिर सफर ना भी हो तो भी रोजा तोड़ना बोलो भाई जायज है। तो एक मसला है। दूसरा मसला ये, मुसाफिर ने रोजा छोड़ दिया, सफर में सहरी आई थी, आप यहां यानी आप जहाज में बैठे लाहौर से कराची आ रहे हैं, रास्ते में सहरी का वक्त हो गया जहाज के दौरान, प्रवास के दौरान, तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, आपने छोड़ दिया रोजा। लेकिन जब आपने रोजा छोड़ा तो जहाज में बैठ के जितना खाना है खा लें। जब एयरपोर्ट पे आप उतरे और कराची में मुकीम बन गए, तो जैसे ही अपने इलाके में दाखिल हो गए, यानी शहर में दाखिल हुए, तो उस वक्त खाना पीना आपके लिए जायज नहीं है, बंद, क्योंकि अब आप मुसाफिर नहीं रहे। अगरचे रोजा नहीं है, लेकिन रोजेदारों की तरह आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ना मुसाफिर रहे ना मरीज रहे। तो फमन शहीद मिनकुम मुश्शहरा, कि तुम में जो इस महीने को पाएगा वो रोजा रखे, तो उसको रोजा रखना, अगरचे ये शरई रोजा नहीं होगा, क्योंकि सहरी, क्योंकि वो तो खाते आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी रोजेदारों की तरह रहना आपका क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। नहीं आई बात? हमने देखा है मुसाफिर का रोजा नहीं है, वो आगे खा रहा होता है, भाई अब तो मुसाफिर नहीं रहे ना तुम, अब थोड़ी मुसाफिर हो, अब चुप आराम से जैसे दूसरे बैठे गए ना इस तरह बैठो, खाने पीने की इजाजत। वो कहते हैं जब मेरा रोजा ही नहीं है तो रोजा भी मुझे बाद में भी कज़ा करना पड़ेगा, और अभी मुझे खाने पीने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बाद में ये कज़ा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आधे दिन तो आप चलते रहे ना, आधे रोजे थोड़ी होते हैं, और आधा दिन आपको रोजेदारों की तरह रहना भी पड़ेगा। समझने की नहीं समझे? तो ये हकाम है जिनके लोग रियायत नहीं करते। तो ये तो खैर आज का मौजूद इसी तरफ चला गया। मैं छोटी बात की, आजकल वो जो लाइव शो में हुआ ना, वो आमिर लियाकत साहब के वो फटेबाजी हो गई, तो हमें इन शोबों से वो नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें कुछ बातें जो गलत हैं और वो उनको डिफाइन करना या उनको हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है कि ये आइंदा भी हो सकता है, और इसमें लोग दिलचस्पी लेते हैं, धड़ेबंदी हो जाती है। तो उलमा की बहरहाल जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी पे जुल्म हुआ है तो उस जुल्म को मैं समझता हूं बयान किया जाए। उसमें जो अहले हदीस आलिम थे, मैं ये समझता हूं उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है।
क्योंकि वो ना कह रहे मैं जाकिर नाइक का खलीफा हूं, ना मैं वो कह रहे मैं वो बात कर रहे, लेकिन उसको तोपे लेके गुस्ताखे रसूल पर खाम जबरदस्ती। तो मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने भी इस तरह किया है उन्होंने कोई जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। बाकी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो ये लफ्ज एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो नबी की जिससे तौहीन का इशारा होता है, तो हमने सुना कि बाद में उन्होंने उस पर माजरत भी की है। और उसका वो बाकी वो मसला क्या है तो मैंने आज जुम्मे के बयान में उसको तफसील से बताया है कि इस तरह जरा जरा सी बातों पे अल्फाज की जो जबान लुढ़खड़ाती है और बंदा कह भी रहा है कि मेरी ये नियत नहीं है, तो उस पर फौरन तौहीन रिसालत के मुकदमे मत चलाया करो। मैंने इसकी कुछ मिसाल दी है कि हदीस में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इंसान की जबान वो बोलना कुछ चाहता है, निकलता कुछ है मुंह से, तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना अल्लाह का गुस्ताख करार दिया, ना तौहीन रिसालत का मुत्तकी करार दिया। तो हमें अगर नबी की सीरत को फॉलो करना है तो फिर पूरे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो वो बड़ा जुल्म हुआ है हदीस आलिम के साथ। मैंने वो कल क्लिप देखा, मुझे लोगों ने भेजा, तो मैंने देखा वो बहुत ज्यादा वो खाम ऐसा ना हो कि मुझे ये डर है कि वो एक जो है ना वो एक जुलूस निकलना शुरू हो जाए कि ये अहले हदीस जो है वो क्या होते हैं, माज़अल्लाह गुस्ताखे रसूल होते हैं। तो फिर ये क्या होगा, अहले हदीस और हनफियों का या बरेलियों का क्या हो जाएगा, टकराव। तो हमारा मुल्क अभी इस किस्म के टकराव का मुतहम्मिल बोलो भाई नहीं है। हमारे मुल्क में बड़े फटे चल रहे हैं, तो इसलिए जो भी इस किस्म की चीजों को में जज्बातियत का शिकार होते हैं, सोशल मीडिया पे हमारा फर्ज है कि हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करें और उनको बताएं जो भी अल्लाह के रसूल को मानने वाला है वो कभी भी गुस्ताखे रसूल नहीं हो सकता। सब मुसलमान अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ताबीरात में कभी कभार जबान क्या होती है, तो इसलिए कि अगर उलमा रहनुमाई न करें, सोशल मीडिया पे लोगों के बड़े जहरीले कमेंट्स हैं, उससे और ज्यादा नफरतें फैल रही हैं। हर आदमी अपने फिरके को लेकर ना अब उसको मौका मिल गया है। कोई भी ऐसा जैसे कोई कमजोर पिट रहा हो ना अब उस कमजोर ने आपके पैसे भी लिए हुए थे, बल्कि एक ताकतवर पिट रहा हो फर्ज करें, उसने आपके भी पैसे लिए हुए थे, तो आप उसको मार सकते नहीं थे। अब क्या हुआ है कि वो लोग उसको कूट रहे हैं, तो आप भी जाके उस पर चोरी का इल्जाम लगा के थप्पड़ मार। मकसद चोरी नहीं होती, इसने जो है ना मेरे पैसे देने। हम सरगोदा में थे तो एक चोर पकड़ा गया, तो एक साहब ने उसको 2-3 लोगों ने ना उसको दरख्त से बांध दिया। चोर बड़ा ताकतवर था, अब लोगों ने कुछ चांटे माटे मारना शुरू किए। तो मैं छोटा बच्चा था, तो मैंने देखा पूरा महल्ला आके अपनी चांटों की ठड़क वहां पूरी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना पीटने का शौक होता है लेकिन उनमें इतना दिल होता नहीं है कि किसी भी हाथ उठाएं। तो सब ने आगे बोला ये बंदा हुआ है, हाथ भी बंधे हुए, चोरी की है, पड़ा। दूसरा आ रहा है, वो भी पड़ा, लाते हैं घूसे। तो साफ पता चल रहा था कि इनको चोरी से, क्योंकि इनकी चोरी थोड़ी की है इसने, इनको ना चोरी से नफरत है, न कुछ चोर से नफरत है, बस ये भी चाहते हैं कि उंगली कटा के हमारा भी नाम किसमें, शहीदों में आए। तो अभी वो बेचारे अहले हदीस आलिम से गड़बड़ हुई, तो हर आदमी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका दावा करके एक बुछाड़ कर रहा है। इससे खतरा यह है कि मसलकी इख्तलाफ कहीं बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, जिसके मुसलमान अभी तहम्मुल नहीं कर सकते। जो भी हक बात है उसको बयान करना चाहिए और इस तरीके से उस पर कमेंट्स करें कि एक दूसरे के जज्बात, ये ऐसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, मुसलमान सब अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाले ही होते हैं। ताबीर में बेचारों से कभी गलती से जुनेद जमशेद बेचारे से हो गई थी, तो ये बड़ा एहसास टॉपिक है। अल्लाह ताला इस उम्मत को अभी वो सुना कि ऐलान किया कि वो किसी अहले हदीस को लेगा ही नहीं चैनल में। आमिर लियाकत साहब ने कोई ऐलान किया, इससे और फिर क़वालीद बढ़ेगी। तो जब बाकी आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहे, शिया आ रहे हैं, बरेलवी आ रहे हैं, देवबंदी आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे? तो इससे यानी ऐसा या तो ये किसी की साजिश है उलमा को आपस में लड़ाने के लिए, और अगर साजिश नहीं भी है तो बहरहाल इस हरकत से कौन खुश हो रहा है, शैतान। और नुकसान किसका हो रहा है? मैं पहले ही इसका कायल नहीं था कि इस तरह उलमा को बिठा के ना मुर्गों की तरह लड़ाया जाए आपस में। वही मसाइल मदरसों में होने चाहिए, और अगर बहस हो भी रही है तो एक दूसरे के एहतराम के साथ तमीज के दायरे में होनी चाहिए।